So hello everyone. Today is the day 44 of 60 days spoken English class, and every day we are learning lots of things. And today also we are going to learn about most used topic. There are some topics which is most used in spoken English. So we are going to learn all these things today, and there will be two classes. Like this is first class, and tomorrow will be the second class. So we are going to start from the first. How many topics are there which is most used in spoken English? So let's see. मेरे पास टाइम है या मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है. सो इफ यू हैव टू से हमारे पास कोई चीज है या उसके पास कुछ है या पास में कुछ होना, सो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है. सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास नॉलेज है. यू हैव नॉलेज, तुम्हारे पास नॉलेज है. मेरे पास गाड़ी है. आई हैव कार. I have a bike, I have a house, I have a laptop, I have a mobile. So if you have to say like हमारे पास कुछ है, so उसके लिए just we have to see the structure. Structure हमें देखना सबसे पहले. Subject plus has have plus object. So this is a simple structure which we have to follow. Subject plus has have according to the subject and object. Okay. For example, I have knowledge. मेरे पास knowledge है. I have money. मेरे पास पैसा है. I have car. I have knowledge. I have car. I have a bike. I have bike. So anything which you have, I have shirt, I have clothes, I have laptop, I have mic, I have whiteboard. You have to just count everything whatever you have. Okay, this is a simple structure which you have to follow. Subject plus has have according to the subject and object. So if you are going to follow it, you are going to make lots of sentences. Like you have knowledge, and if you have to say like he, she, it or name. She has home. He has camel. उसके पास ऊंट है. And it has and Ram has a shop. ठीक है. So if you are going to use like the singular subject, you have to just use the has. Okay, he has, she has and it has, and otherwise you can just make lots of sentences. Okay, they have field. उनके पास खेत. They have field. उनके पास खेत है. So I hope you understand how we are going to make sentences like this. Okay, I have time. He has knowledge, and I have car. I have mobile. He has bike, and they have car. She has clothes. Rahul has a business, and Shavya has necklace. शाविया के पास नेकलेस है. सो हमने एक यूज किया, शाविया हैज नेकलेस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव टू से लाइक हमारे पास कुछ है या उनके पास कुछ है, ठीक है. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. नाउ लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. व्हाट इज सेकंड सेंटेंस? कोई चीज पास थी. अभी हमने देखा कि कोई चीज पास है. लाइक आई हैव ए मार्कर. मेरे पास एक मार्कर है. सपोज पास्ट में बोलना है कि मेरे पास कोई चीज थी, ठीक है, मेरे पास कोई चीज थी, तो उसको हम बनाएंगे जस्ट सब्जेक्ट हैड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट, इसको मैं जस्ट कट कर देता हूं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट में अगर बोल रहा है कि मेरे पास
आई हैड टॉयज, मेरे पास खिलौने थे, ठीक है। सो मैं बोलूंगा आई हैड टॉयज, ओके। सो इफ प्रेजेंट में बोलना है मेरे पास ये चीज है, आई हैव, ही हैज, एंड पास्ट में आई हैड टॉयज, आई हैड मोबाइल्स, आई हैड क्लॉथ्स, वी हैड फुटबॉल, हमारे पास फुटबॉल था, ओके। सो आई हैड टॉयज, वी हैड टाइम, आई हैड होम, आई हैड होम, आई हैड होम, we had mobile. You have to just follow this simple structure, okay? Subject plus had plus object. We had mobile, they had car, she had food, okay, they had business, he had the ability to speak English, okay. This is the long sentence but you can follow. I had family, I had a magical pencil, I had a big book, I had a fridge, ठीक है। सो मेरे पास ये चीज थी, आई हैड, पास्ट में मेरे पास ये चीज थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक हैव, हैज, हैव हमने पढ़ा, और हैड। वन थिंग, इफ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंस लाइक हमारे पास ये चीज थी, तो पास्ट में आपको सब के साथ हैड लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर के साथ भी एंड प्लूरल के साथ भी। प्लूरल जैसे आई, वी, यू एंड दे, प्लूरल I had, we had, you had, they had, and he had, she had, it had, and Ram had. Okay, so I hope you understand it. Like I had, we had, and she had, he had fridge, he had fridge, and she had bedroom. So you have to always use had, okay. So now I hope you understand. Okay, next मेरे पास कार होगी, सपोज अगर हमें बोलना है फ्यूचर में, हमने सबसे पहले प्रेजेंट देखा, नाउ वी सॉ अबाउट द पास्ट, देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फ्यूचर, कि मेरे पास फ्यूचर में ये चीज होगी, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यस। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर विच वी हैव टू यूज इफ यू हैव टू से लाइक इन द फ्यूचर आई विल हैव ए बिजनेस, फ्यूचर में मेरे पास एक बिजनेस होगा, ठीक है। आई विल हैव अ बिजनेस, I will have a car, I will have a car, okay. I will have a car, I will have a business, I will have a business, मेरे पास एक बिजनेस होगा। They will have a cartoon, उनके पास एक कार्टून होगा, ठीक है। सो विल हैव फॉर द फ्यूचर, आई विल हैव ए कार, वी विल हैव ए बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर होगा, वी विल हैव ए बिग हाउस। सो फ्यूचर में इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ओके। सो दिस इज द सेकंड थिंग, शुड हैव, ओके। सो विल हैव हमने देखा, subject plus will have plus object, they will have a cartoon, she will have a big house, उसके पास एक बड़ा घर होगा, ठीक है। he will have an institute, उसके पास एक इंस्टीट्यूट होगा। सो इस तरह से हम बना सकते हैं, ओके। आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ओके। होनी चाहिए, अगर मेरे पास कोई चीज होनी चाहिए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, होनी चाहिए, ठीक है। शुड हैव, होनी चाहिए, अगर मैं मुझे बोलना है तो सब्जेक्ट प्लस
should have plus object. Okay, should have plus object. Yes, this is a simple structure which we have to follow कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए. You should have a car. ठीक है. You should have English knowledge. तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. You should have English knowledge. English knowledge. तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव इंग्लिश नॉलेज. तो सपोज अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए. यू शुड हैव ए बुक. तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए. एंड तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज. तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए. तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए. यू शुड हैव लैपटॉप. तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए. यू शुड हैव इंग्लिश नॉलेज. यू शुड हैव मैकबुक. तुम्हारे पास मैकबुक होना चाहिए. यू शुड हैव एन आईफोन. तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए. यू शुड हैव एन आईफोन. तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए. ओके, सो यू शुड हैव होना चाहिए. तुम्हारे पास होना चाहिए. एंड नेक्स्ट, कुछ चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग लाइक मुझे कुछ चाहिए. ठीक है. सो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो सेंटेंस मुझे कुछ चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ चाहिए. ठीक है. लाइक आई वॉन्ट वाटर. मुझे पानी चाहिए. आई वॉन्ट फूड. मुझे खाना चाहिए. आई वॉन्ट मोबाइल. मुझे मोबाइल चाहिए. सो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे. इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जस्ट हमें सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट. आई वॉन्ट सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इफ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, मुझे कुछ चाहिए. आई वॉन्ट छोले भटूरे. मुझे छोले भटूरे चाहिए. सो सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको वॉन्ट यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है. आई वॉन्ट वाटर. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया. सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, देन वॉन्ट आपको यूज करना है वॉन्ट. आई वॉन्ट वाटर. मुझे पानी चाहिए. ठीक है. सिंपल. आई वॉन्ट वाटर. आई वॉन्ट फूड. आई वॉन्ट फूड. मुझे खाना चाहिए. आई वॉन्ट कार. मुझे कार चाहिए. ही वॉन्ट्स बुक्स. उसे बुक्स चाहिए. सो देयर इज वन डिफरेंस. There is one simple difference which you have to see. Like if you are going to use plural like I, we, you, they, so you don't have to use s. But if you are going to use singular subject like he, she, it, so you have to use s. He wants book. Okay. उसे किताबें चाहिए. She wants scooty. She wants scooty. उसे स्कूटी चाहिए. ठीक है. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई वॉन्ट योर अटेंशन. मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए. आई वॉन्ट नॉलेज. मुझे नॉलेज चाहिए. आई वॉन्ट बाइक. मुझे बाइक चाहिए. आई वॉन्ट गुलाब जामुन. Yes. So you have to just use the simple like I want this, I want this. Simple use करो. I, we, they, you. You want food. You want light. You want anything you can use. Okay. मुझे ये चीज चाहिए. So I hope you understand it. Want चाहिए. And next is चाहिए था. Next is
फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू से मुझे ये चाहिए था, ठीक है, आई वॉन्टेड नॉलेज, मुझे नॉलेज चाहिए थी। सो उसको हम कैसे बनाएंगे कि पास्ट में चाहिए था, अभी हमने देखा प्रेजेंट में आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी मुझे ये चाहिए था, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस वांटेड, दिस इज अ सेकंड फॉर्म, ओके। वांट का वांटेड, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। So this is a simple structure, subject plus wanted plus object. So this will be like past tense, okay. How we are going to use sentences like I wanted water, मुझे पानी चाहिए था। I wanted food, मुझे खाना चाहिए था। I wanted food. You have to just use the wanted because this is a second form of want, wanted. So we are making sentences in the for the past, okay. So I wanted food, she wanted bike, I wanted clothes, I wanted pen, I wanted your time, मुझे तुम्हारे टाइम चाहिए था। And I wanted your time, he wanted some food, उसे कुछ खाना चाहिए था। I wanted some money, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ठीक है। I wanted some money, I wanted some money. So subject plus wanted plus object, your sentence is ready. I wanted some food, I wanted some knowledge, and this is clear now. Now let's see without subject to say कुछ है, कुछ कहीं कुछ है, okay. So okay, if you have to say like कुछ है, there is no subject, अगर सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास और हमें कहना है कि कोई है, सो हम यूज करते हैं देयर, ओके। लाइक कुछ है या कहीं कुछ है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर एंड प्लस इज एम आर एंड ऑब्जेक्ट, ओके। सो लेट मी क्लियर दिस। सब्जेक्ट प्लस is mr plus object, okay. Subject plus is mr plus object, okay. So if you are going to say like suppose, so you have to use there, like तारे हैं, तो तारे हैं, star are, there are star, so you have to use there, okay. We are using there if in a subject there is no, in sentence there is no subject. सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम यूज करते हैं देयर, ओके। लाइक देयर आर स्टार्स, ओके। सो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल देयर आर स्टार्स, तारे हैं, लोग हैं, देयर आर पीपल, देयर आर पीपल, लोग हैं। So we have to always use there if there is no subject in the sentence. There are stars, तारे हैं, there are stars in the sky, आसमान में तारे हैं। There are fish in the pond, तालाब में मछलियां हैं। There are 6 members in my family, मेरे घर में 6 लोग हैं। There are 6 members in my family, okay. There are 6 members in my family, 6 लोग हैं हमारे घर में। And there are 4 rooms in my house, there are 4 rooms in my home, there are 50 teachers in my school, and there are 2006 homes in my, there are 2006 bones in my body, ठीक है। So you can use there, you can use there,
देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, ठीक है। सो वी सॉ अबाउट देयर, ओके। सो देयर कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं देयर, जो कि देयर यूज हेल्प करता है एक सब्जेक्ट के सेंटेंस में होने का। सो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, देयर आर स्टार्स, देयर आर वाटर, देयर आर पीपल, लोग हैं। सो जस्ट दिस इज क्लियर नाउ एंड लेट्स सी अनदर। Past, there were guests, okay। If you have to make past like there are stars, so तारे थे, there were stars, हमें past में बना देना। there were people, just we have to use was and were, it will become past, okay। and now second, कोई काम करो, for example someone is saying like कोई काम करो, सो हम यूज करेंगे कंप्लीट योर वर्क, इंपरेटिव सेंटेंसेस की तरह, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, वर्ब यूज किया, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करो। टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो, वर्ब यूज किया, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो, ठीक है। लुक एट देयर, उधर देखो, लुक एट देयर, उधर देखो, उधर देखो, लुक एट देयर। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। कम हेयर, इधर आओ, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कम हेयर, इधर आओ। लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ठीक है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जस्ट वी हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ओके। यू कैन मेक सेंटेंसेस। डिनाई करना, किसी काम को डिनाई करना, इफ यू हैव टू डिनाई एनी टास्क और एनी वर्क, ओके, डिनाई करना काम से। सो कैसे हम बोलेंगे, डोंट, हम यूज करेंगे डोंट, ओके, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, V1 plus object. So we have to use this structure to make sentences to deny something or deny someone, like don't shout at me, don't shout at me, मुझ पर मत चिल्लाओ, don't shout at me, मुझ पे मत चिल्लाओ, ठीक है, हमने डिनाई किया। don't drive fast, डोंट ड्राइव फास्ट, तेज मत चलाओ। एंड डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड मत खाओ। डोंट ईट जंक फूड, डोंट रन फास्ट, डोंट रन फास्ट, तेज मत भागो, ठीक है। सो वी मेक सेंटेंसेस लाइक डिनाई करना, किसी काम को डिनाई करना। डोंट यूज सो मच मोबाइल, बहुत ज्यादा मोबाइल मत यूज करो। डोंट स्लीप एवरी टाइम, हर बार सोते मत रहो, ठीक है। डोंट वॉक, चलो मत। डोंट रन सो फास्ट, तेज मत भागो। सो यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। डिनाई करना, किसी काम को मना करना, डिनाई करना, बस ना मानना। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड चलो करते, ठीक है। दिस इज अ लास्ट सेंटेंस विच वी आर गोइंग टू लर्न। चलो करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू से चलो इंग्लिश सीखते हैं, सो हम उसके लिए यूज करते हैं लेट्स, ठीक है। चलो करते हैं,
उसके लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, V1 an object. So we use this structure to say like let's कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं, let's learn English, चलो इंग्लिश सीखते हैं. Let's learn English, चलो इंग्लिश सीखते हैं. Let's play game, चलो गेम खेलते हैं. Let's play game, चलो गेम खेलते हैं. Let's talk, चलो बात करते हैं. So what we are doing, we are just adding let's. सबसे पहले हम let's यूज कर रहे हैं. Let's, then हम verb की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. Let's talk, चलो बात करते हैं. Let's have party today, चलो आज पार्टी करते हैं. Let's meet, चलो मिलते हैं. Let's sleep, चलो सोते हैं. Let's read, चलो पढ़ते हैं. So you have to just use let's and verb की first form. You can make lots of sentences. Okay. So this was the class of 44, and yes, these were something like we are using lots of in our communication, in our spoken English. So we learn about it, and I hope you got lots of knowledge in this class. So thanks for today, and tomorrow we will also learn something which is so important in English, and this will be the part 2. Okay, so thank you for today.